Welcome to the Vision Gate. Myself Rahul Jha, and in the previous lecture we have started our vibration, and in this lecture we will continue our left topic of the vibration. So let revise our last lecture first, and then we will continue this session. And in the last section we have discussed about the parallel axis theorem. We have discussed about parallel axis theorem, what is restoration, what is we have also discussed about restoration, and what are the different types of restoration, that are springs, springs, gravity and fluid, spring, gravity and fluid. Okay, after that we have started our we have started the concept of a spring, and we come to know that what is the spring spring stiffness, that is k equal to g d to the power 4 upon 64 r cube n. One of the most important formula of the spring, and the denotation where g is equal to modulus, g denote g is denoted by modulus of g is equal to modulus of rigidity, d equal to wire diameter, d is equal to wire diameter, and and here r means, what is r? R is means mean coil radius, and n means number of turns. Okay, so we have already studied about these topics in our previous video, and we have also seen what happen if we cut a spring into a two part. If the length of the spring is divided in the ratio xy, in the ratio x by y, the stiffness, what happen to the stiffness, means the stiffness of the respective part will be in the ratio y by x, so, and we have also seen about the different that r is inversely proportional to 1 by n, and k is inversely proportional to 1 by length of the springs. Now in this video we will continue our video with the connection of a spring. There are basically two kind of connection of a spring. First one is series connection, and the second one is parallel connection. So let's begin our today's topic from connections of a spring. The first one is from connections of a spring. So put the heading as connection connections of springs. So the first one is, we all know that the first one is series connection. What is that? What is basically the series connection? Series connection means, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम देखना है हमें. K1 K2 equal to K equal to K equivalent. Okay,
जब भी सीरीज कनेक्शन हम किसे कहेंगे, ठीक है, तो जब हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ द मास का जो डिफ्लेक्शन होगा इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 1 प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 2, then it will be known as these two springs are in the series connection. Deflection of mass equal to deflection of spring 1 plus deflection of spring सेकेंड. ओके, यहाँ तक क्लियर. तो मास का जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑफ मास क्या होता है? डिफ्लेक्शन ऑफ मास इक्वल टू, अगर हमारा दो स्प्रिंग सीरीज कनेक्शन में है तो हम लोग कब बोलेंगे वो सीरीज कनेक्शन है? जब इस मास का डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 दोनों का जब डिफ्लेक्शन को ऐड करेंगे तो नेट डिफ्लेक्शन के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये सीरीज कनेक्शन में है. ठीक है, और आगे हम लोग अच्छा एग्जांपल अभी जस्ट करने वाले हैं, तो और क्लियर होगा कि सीरीज कनेक्शन कब होता है, पैरेलल कनेक्शन कब होता है. ठीक है, अब स्प्रिंग फोर्स जो आएगा वो किसके बराबर होगा? तो दो क्राइटेरिया मेजर होता है, कंडीशंस होता है स्प्रिंग को सीरीज कनेक्शन में बोलने के लिए. वो दो क्राइटेरिया क्या क्या है हमारे पास? व्हाट आर दीज टू क्राइटेरिया so that we can call the spring are in the series connection? Del mass is equal to, del here is deflection, del mass is equal to del S1 plus del S2. We have studied this just a few seconds earlier. Okay, after that spring force, that is FS1 equal to FS2 equal to mg. ओके, तो ये दो क्राइटेरिया है हमारे पास जो हम लोग कह सकते हैं स्प्रिंग कनेक्शन के लिए, जो कंडीशंस ऑफ द स्प्रिंग कनेक्शन, दैट ये हमारे पास, ये स्प्रिंग हमारे पास सीरीज कनेक्शन में है. ठीक है, अब अगर कोई भी सीरीज कनेक्शन में है तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है आप लोग के लिए. इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये दोनों को अंडरलाइन करके बॉक्स में डाल के समझना है. ये दो कंडीशन होते हैं अगर हमारे पास सीरीज कनेक्शन में है, और पैरेलल में भी दो कंडीशंस होते हैं, वो मैं भी अभी बताने वाला हूँ. बट 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2. ओके, तो यहाँ से हमारे पास के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2. ओके, यहाँ तक क्लियर? के इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया. ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने दो स्प्रिंग लिया, अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग हो, if there are n number of spring in the series connection, then what is the formula of k equivalent? So write down note point, that if there are n springs in series connections, then 1/k
K equivalent would be equal to summation of 1 by Ki, I equal to 1 to n. ओके, इसको भी बॉक्स में डालो और आपको ये सारी बातें ध्यान में रहना चाहिए सीरीज कनेक्शन के लिए। अब आगे बात करेंगे हम लोग पैरेलल कनेक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर पैरेलल कनेक्शन, ओके। Second one is parallel connection, okay. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम समझिए। M K1 K2, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इन दोनों स्प्रिंग को हटा के मैंने एक स्प्रिंग के इक्विवेलेंट लगा रखा है जिसका मास तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब पैरेलल कनेक्शन का क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो जितना ये मास मूव करेगा, ठीक है, मान लो इस मास का x डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 दोनों x डिस्टेंस से मूव किए होंगे तभी ये मास का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास या फिर डिफ्लेक्शन ऑफ मास क्या किसके बराबर है, स्प्रिंग 1 के डिफ्लेक्शन और स्प्रिंग 2 के डिफ्लेक्शन के बराबर। बट इन सीरीज कनेक्शन हमने क्या पढ़ा था, डिफ्लेक्शन ऑफ मास स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 का समेशन ऑफ डिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो डिफ्लेक्शन ऑफ मास इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ मास इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 1 इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 2, ठीक है। मास डिफ्लेक्शन इक्वल टू स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 के डिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो mg इसके बाद हम लोग बात करें तो mg क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, fs1 प्लस fs2, fs1 प्लस fs2 दोनों का फोर्स के बराबर होगा ना, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को फ्री बॉडी डायग्राम से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमारे पास किसके लिए आ गया, सिमिलर टू सीरीज कनेक्शन में भी हमारे पास दो कंडीशंस आए थे और पैरेलल कनेक्शन में भी हमारे पास दो कंडीशन है। तो ये दो कंडीशन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये दो कंडीशन आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि ये दो कंडीशन किसके है, पैरेलल कनेक्शन, ओके। कंडीशन फॉर पैरेलल कनेक्शंस, यहाँ तक क्लियर। ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन के कंडीशंस हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग के इक्विवेलेंट की। तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे K1 प्लस K2, के इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, K1 प्लस K2, ठीक है। और अगर जैसा कि हमने नोट लिखा था, ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग हो तो वहां पे के इक्विवेलेंट क्या होगा, के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा वहां पे, के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पे अब नोट वही सिमिलर नोट नहीं लिखवाने वाला हूँ, बस आप लोग समझिए। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स रहेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट 1 to n Ki। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गया।
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कुछ अच्छा एग्जाम्पल्स लेता हूँ जिससे और क्लियर होगा, जो काफ़ी टाइम काफ़ी बच्चे समझने में। देखिए कंडीशंस जो मैंने दो पढ़ाया है ना, वो उन दो कंडीशंस में अगर दिमाग मतलब दिमाग में बिठाए रखिएगा तो कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को पहचानने में, ठीक है। बट वहाँ से जैसे ही हटिएगा तो फिर प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं। ओके, तो नोट डाउन करिए। हाँ, तो नोट डाउन करिए। क्वेश्चन डालिए, आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस। ओके, तो फर्स्ट वन क्या है हमारे पास? फर्स्ट वन क्या है? K1 मास, K2, ओके, ये किस चीज में आएगा? ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, आप लोग बताइए, ये हमारे पास सीरीज कनेक्शन में आएगा या फिर पैरेलल कनेक्शन में आएगा? चलिए एक और क्वेश्चन तब तक मैं डाल रहा हूँ, आप लोग तब तक सोचिए, फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। सेकेंड वन, ठीक है। अब इन दोनों को सर्कल कर लीजिए, ठीक है। अब ये पैरेलल, फर्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन था, ये पैरेलल कनेक्शन क्यों इसे हम कह रहे हैं? ठीक है, क्योंकि लेट सपोज ये हमारे पास मास है, लेट सपोज ये मास हमारे पास एक्स ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग वन क्या हो जाएगा? एक्स कंप्रेस हो जाएगा, और स्प्रिंग टू क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स एक्सपांड हो जाएगा। तो नेट दोनों स्प्रिंग कितने कितने का डिफ्लेक्शन आया दोनों स्प्रिंग में? तो इक्वल टू एक्स, एक्स का ही डिफ्लेक्शन हमारे पास देखने के लिए मिला स्प्रिंग वन और स्प्रिंग टू में भी। इसीलिए मैंने क्या बोला था, अगर मास का डिफ्लेक्शन किसके बराबर हो? स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन के बराबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे? स्प्रिंग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन। यहाँ तक क्लियर? फर्स्ट वन क्लियर? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, कंसेप्ट क्लियर होगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन के। बट अगर यहाँ पे आ जाओ, सेकेंड वन में आ जाओ, तो क्या मास अगर एक्स ऊपर मूव हो रहा है तो क्या हम देखेंगे स्प्रिंग का जो अगर ऊपर हो रहा है तो स्प्रिंग वन जो है कितने से मूव हो रहा है? अगर मान लो लेट सपोज यहाँ पे ये हमारा मास एक्स डिस्प्लेस हो गया, ठीक है।
तो स्प्रिंग 1 में तो एक्स डिस्प्लेसमेंट आया, बट स्प्रिंग 2 में चलो यहाँ पे तो एक्स आ गया, ये इलोंगेट हो गया एक्स, स्प्रिंग 1 कंप्रेस हो गया एक्स, बट नीचे जो हमारे पास बेस है, बेस भी मूव को कर रहा है ऊपर की ओर, तो नेट कंप्रेशन क्या आ गया स्प्रिंग 2 में, एक्स माइनस वाई। तो इसी तरह मतलब इक्वल नहीं हुआ, तो ये क्या आ गया, ना तो पैरेलल है, मतलब पैरेलल कनेक्शन में इक्वल होना चाहिए, और ऐड ऑन होके भी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये सीरीज कनेक्शन भी नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल, इसीलिए हमने नाइदर सीरीज एंड नॉर पैरेलल का केस लिया है। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। अब आगे बात करते हैं, चलिए दो अलग अलग केस हमने देख लिया, अब नेक्स्ट केस देखिए। अब अगर नेक्स्ट केस की हम लोग बात करें तो ओके, तो अगर हम लोग नेक्स्ट केस की बात करें तो स्प्रिंग जो है हमारे पास, आप लोग बताएंगे, थोड़ा सा सोचिए इस पे। स्प्रिंग आखिर ये सीरीज केस का एग्जांपल मैंने पूछा, या फिर पैरेलल केस का एग्जांपल मैंने पूछा, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सीरीज, ऑप्शन बी पैरेलल, एंड ऑप्शन सी neither series nor parallel, neither series nor parallel। यहाँ तक क्लियर? तो इस केस में हम लोग देखेंगे, क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। अच्छा चलिए बताइए क्या होगा, अगर मास जितना से डिस्प्लेस करेगा तो ये स्प्रिंग को डिस्प्लेस करेगा एक्स अमाउंट से, ये जितना से डिस्प्लेस करेगा ये रॉड को डिस्प्लेस करेगा, ये रॉड जितना से डिस्प्लेस होगा फिर वो इतना से डिस्प्लेस, तो नेट डिस्प्लेसमेंट मास का क्या हो जाएगा, इसका समेशन प्लस इसका समेशन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, यहाँ पे मास का डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों स्प्रिंग के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, किसका केस हो गया, सीरीज कनेक्शन का केस हो गया, स्प्रिंग आर इन द series connection। Springs are in series connection, springs are in series connection। क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद मास का डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग को सीरीज कनेक्शन हम लोग इसे कह रहा है, ठीक है। तो इसे ए को टिक मारिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें अब हम लोग अगर बात करें जो इंक्लाइंड स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग टॉपिक समझेंगे। जो इंक्लाइंड स्प्रिंग रहा तो के इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, और नॉर्मल स्प्रिंग से थोड़ा सा हटके होता है, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस हम लोग को फॉर्मूले समझने हैं जो अगर इंक्लाइंड रहा तो कैसे हम लोग को उसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक डालिए इंक्लाइंड स्प्रिंग। टॉपिक का नाम डालेंगे हम लोग इंक्लाइंड स्प्रिंग। टॉपिक का नाम डालेंगे इंक्लाइंड स्प्रिंग, ओके।
तो ये हमारे पास लेट सपोज एक इंक्लाइंड स्प्रिंग का हमारे पास केस है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट है मास का, और ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि अल्फा डिग्री से इंक्लाइंड है हॉरिजेंटल से। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें तो इसे अगर हम लोग हॉरिजेंटल लाइन पे अगर इंक्लाइन करते हैं तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, ठीक है, वो हम लोग बताते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आप लोग को अभी समझना नहीं है। ठीक है, तो इसे बस एज अ लर्न करिए, क्योंकि गेट हमारा थ्योरम की वजह ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पे रहता है। तो इसे बस इतना समझ लीजिए, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, जब हम इस स्प्रिंग को जब हम इस स्प्रिंग को जब हम इस स्प्रिंग को के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जब हम स्प्रिंग को हॉरिजेंटल में रख रहे हैं तो ये हमारे पास सिमिलर मास है, ये हमारे पास ये है। ठीक है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, के इक्विवेलेंट इक्वल टू के इंटू कॉस, के किससे रिप्लेस हो जाता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल, जो भी एंगल हैगा। तो के हमारे पास किससे रिप्लेस हम लोग को करना है, के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, के इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के इंटू एक्स। तो बट यहाँ पे हमारे पास के इक्विवेलेंट क्या है, के कॉस स्क्वायर एक्स अल्फा इंटू एक्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाता है, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास स्प्रिंग फोर्स। बट हमारे पास के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, के कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स, के कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स। यहाँ तक सही है, के कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। स्प्रिंग, अगर यहाँ इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझिए, इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर हमारा स्प्रिंग अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है, ओके, अगर हमारा स्प्रिंग, जस्ट अ सेकेंड, पावर शटडाउन इशू, ओके, तो अगर हमारा क्या हो जाएगा, ओके, जस्ट अ सेकेंड, तो अगर हमारा क्या हो गया, हाँ, अगर हमारा स्प्रिंग अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है तो हम लोग के को किससे सिंपल क्या करना है, के को के इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन ये दो सरफेसेस के, मतलब इंक्लाइंड सरफेसेस, हॉरिजेंटल लाइन से और इंक्लाइंड सरफेसेस के बीच का जो एंगल है, उस एंगल से कॉस स्क्वायर अल्फा से इन मल्टीप्लाइड बाई के ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो के हमारे पास के इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास, के
कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार गेट में आता है इस टाइप्स के प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तो काफ़ी आप लोग को इजी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास इक्विवेलेंट के निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट के। दिस इज k1, here is a mass, and this one is k2 fixed, and this one is k3 45 डिग्री। ठीक है, ये डिस्प्लेस क्या किधर कर रहा है? ये डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में x1 कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये दो 90 डिग्री पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, k1 और k2 को इस इधर, अगर इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो इस एक्सिस में ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया हमारे पास? 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल क्या है? 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? k2 cos स्क्वायर 45 एंड k1 cos स्क्वायर 45। ठीक है, तो अब नया डायग्राम हमारे पास क्या आ गया? स्प्रिंग का। स्प्रिंग का अगर हम लोग नया डायग्राम की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? k3 मास ये क्या आ गया? k1 cos स्क्वायर 45। ये क्या है हमारे पास? k2 cos स्क्वायर 45। अब आप लोग इस टाइप को क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को फिर से एक के इक्विवेलेंट निकालो, फिर उन दोनों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम लोग अब बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है डैम्पिंग के बारे में। ठीक है, डैम्पिंग के बारे में, तो सब हेडिंग डालिए डैम्पिंग। सब हेडिंग डालेंगे हम लोग डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग मतलब क्या होता है? डैम्पिंग मतलब क्या होता है? आप लोगों ने ये बाइक में काफ़ी बार डैम्पर सुना होगा। डैम्पर यूज होता है, या फिर शॉक एब्जॉर्बर। वो एक्चुअली क्या करता है? ठीक है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस इन एनर्जी, मतलब जो एनर्जी आ रहा है, ठीक है, उसको डेसिपेट करना, मतलब इजिली उसको डैम्ड कर देना। ठीक है, तो उस टाइप को उसे हम लोग क्या कहते हैं? डैम्पिंग। मतलब ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस इन एनर्जी। रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस इन एनर्जी।
रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस इन एनर्जी। यहाँ तक काफ़ी क्लियर है। हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस इन एनर्जी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग काफ़ी बार सुने होंगे बाइक में डैम्पर क्यों यूज़ करते हैं, जो हमारे पास जर्क आ रहा है, ठीक है, जो हमारे पास जर्क आ रहा है उसे इजीली वो डिसिपेट कर दे, उस एनर्जी को इजीली वो डिसिपेट कर दे और हम लोग को रिलीफ महसूस हो, वो जर्क ज़्यादातर महसूस नहीं हो। ठीक है, अब डैम्पिंग हम लोग बेसिकली तीन फॉर्म में कर लेते हैं, मतलब तीन डिफरेंट थ्री, दे आर थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल damping, second one is viscous damping, and the third one is material damping. Okay, so in detail we will study about only viscous damping. We broadly categorize damping in three categories, that is frictional damping, frictional damping, frictional damping, viscous damping, viscous damping, and material damping. Frictional damping, viscous damping, and material damping. Okay, तो थोड़ा सा हम लोग फ्रिक्शनल डैम्पिंग के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बट मेजर पार्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, अपना जो पार्ट ऑफ गेट ऑफ सिलेबस है वो विस्कस डैम्पिंग है, तो विस्कस डैम्पिंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, सॉरी, नोट डाउन करिए। इन फ्रिक्शनल डैम्पिंग की अगर हम लोग बात करें, फ्रिक्शनल डैम्पिंग की अगर हम लोग बात करें तो इन फ्रिक्शनल डैम्पिंग a constant friction force is always acting opposite to the direction of relative motion, जिसके कारण हमें डैम्पिंग महसूस होता है। ठीक है, जिसके कारण वो एनर्जी को रेसिपेट करता है। ठीक है, सॉरी, नॉट रेसिपेट, डेसिपेट। ओके, तो नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन अबाउट द फ्रिक्शन डैम्पिंग, that in frictional damping a constant friction force, in frictional damping a constant frictional force always act opposite to the direction of relative motion, to the direction of relative motion. In frictional damping a constant frictional force always act opposite to the direction of relative motion. ठीक है, फ्रिक्शनल डैम्पिंग के बारे में ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, आगे हम लोग विस्कस डैम्पिंग जो हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास विस्कस डैम्पिंग की अगर हम लोग बात करें तो नोट डाउन करिए, इसे मैं इरेज करता हूँ, रब करूँगा और टॉपिक डालिए सबहेडिंग विस्कस डैम्पिंग। विस्कस डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग। ओके, और अगर कहीं पे भी आप लोगों को समझने में कहीं थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप हमें डायरेक्ट
डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही हो वाइब्रेशन, थ्रू आउट वाइब्रेशन में कुछ भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे विस्कस डैम्पिंग की। तो लेट सपोज ओके, तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या हो जाता है, वर्क डन बाय द फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू लॉस इन एनर्जी। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी आप लोग फ्लूइड में पढ़ लिया होगा आई थिंक। न्यूटन लॉ, हमारा फ्लूइड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वर्क वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इन एनर्जी। वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू लॉस इन एनर्जी, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, अब बात करेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि यहाँ पे डैम्पिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो विस्कोसिटी तो आएगा ही, ठीक है। तो फ्रॉम न्यूटन्स, क्योंकि हमारा पास फ्लूइड पार्ट हमारा पास हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टॉ क्या होता है। टॉ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। इसमें डी यू क्या होता है और डी वाई क्या होता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टॉ क्या हो जाएगा हमारे पास, टॉ विल बी इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। टॉ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। और डी यू क्या है, टॉ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू क्या हो जाता है हमारे पास, यू टू माइनस यू वन। और डी वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई टू माइनस वाई वन। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को। तो टॉ क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू इंटू यू टू माइनस जीरो अपॉन वाई टू माइनस जीरो। टॉ इक्वल टू, ये आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को अच्छे से। म्यू इंटू, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग का एफएम अच्छे से नहीं हुआ है, जाके रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्ट फोर्स किसके इक्वल हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो डायरेक्ट फोर्स किसके इक्वल हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो देयरफॉर, यहाँ से क्या हम लोग को समझ में आ रहा है, देयरफॉर 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 ड्रैग फोर्स, चलिए यहाँ पे नोट डाउन करिए, देयरफॉर देयरफॉर
देयरफॉर एफ डी दैट इज ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा था हमारे पास, एक्स डॉट इन ट्रांसलेशन, इन ट्रांस नॉट इन रोटेशन, रोटेशन की बात हम लोग आगे करेंगे, ट्रांसलेशन की अभी हम लोग बात कर रहे थे, इन ट्रांसलेशन। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। एफ डी इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग हटाने के लिए कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एफ डी क्या आ गया हमारे पास, सी इंटू एक्स। अब इसमें सी क्या हमारे पास है, जो कांस्टेंट हमने यूज किया उसे हम लोग क्या कहते हैं, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। डैम्पिंग कोएफिशिएंट, एक्स डॉट क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, एक्स डॉट क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। यहाँ तक समझ में आ गया। एफ एफ डी क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे एफ डी को, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। एफ डी हमारे पास क्या है, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। अगर बट इन रोटेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक्स डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक्स डॉट क्या है, ट्रांसलेशन में एक्स डॉट यूज करते हैं बट रोटेशन में थीटा, रोटेट कर रहा है ना तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो थीटा डॉट। इसी तरह सिमिलरली, चलिए नोट डाउन करिए, इन रोटेशन ऑल्सो, सिमिलरली इन रोटेशन, इन रोटेशन डैम्पिंग, डैम्पिंग टॉर्क क्या आ जाएगा, ठीक है। डैम्पिंग टॉर्क क्या आ जाएगा, टी डी इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू थीटा डॉट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से सी इक्वलेंट क्या आ गया, टी डी अपॉन थीटा डॉट, थीटा का। अच्छा, इस टाइप्स के क्वेश्चन में जब भी आएंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन, एसआई यूनिट काफी ध्यान से पढ़ना। थीटा किस में होगा, रेडियन में, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर सेकेंड में, तो यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर सेकेंड अपॉन रेडियन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग एक चीज नोट डाउन करते हैं, इनर्शिया जो हमने पढ़ा था, इनर्शिया, रिस्टोरेशन एंड डैम्पिंग, तीनों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, इनर्शिया, रिस्टोरेशन एंड डैम्पिंग। तो एक कंसाइज नोट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द फ्रिक्शन चैप्टर 4, डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, सी इंटू एक्स जेड। सी को हम लोग क्या कहते हैं, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, हम लोग सी को कहते हैं, ठीक है। सी को हम लोग क्या कहते हैं, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। अब आगे आते हैं हम लोग, इनर्शिया की अगर हम लोग बात करें तो इनर्शिया डील्स with kinetic energy. What does inertia deals with? Inertia deals with kinetic energy, deals with kinetic energy, okay. Second, restoration deals with potential and strain energy, potential and strain energy. Damping deals with loss of energy. डैम्पिंग किस चीज से डील कर रहा था हमारे पास, लॉस ऑफ एनर्जी से। डील्स विथ काइनेटिक एनर्जी, डील्स विथ पोटेंशियल स्ट्रेन एनर्जी, एंड डैम्पिंग डील्स विथ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक ठीक है, आप लोगों को सबको मालूम ही होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, बट फिर भी नोट डाउन कर लीजिए एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में, नोट डाल के लिखिए,
नोट डाल के लिखना है। अच्छा, यहाँ तक किसी को भी समझने में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो बेहिचक हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए। कहीं पे भी कुछ भी टॉपिक्स में समझ में नहीं आ रहा, और जितना भी टॉपिक बचा हुआ है विजन गेट से, मैं समझ रहा हूँ काफ़ी सर लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ, और जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का अभी मेनली किस पे फोकस करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है हमारे पास, टेस्ट सीरीज जितना हो पाए, टेस्ट सीरीज प्लस क्लास नोट्स। ठीक है, टेस्ट सीरीज और क्लास नोट्स। ठीक है, टेस्ट सीरीज का अलग नोटबुक बनाना है। जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हाँ, यूनिट पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जरूर रहेगा जिसमें यूनिट कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ उसी पे बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा और यूनिट कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड होगा। और एग्ज़ाम से पहले नर्वस नहीं होना है, अच्छे से रिवाइज करके जाना है। क्लास नोट को जितना से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग बना रखे हैं तो शॉर्ट नोट्स से अभी रिवीजन करना चालू कर सकते हैं, और बट क्लास नोट को भी अभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि अभी एक मंथ है आप लोग के पास, तो टेस्ट सीरीज दीजिए जितना से ज़्यादा। हमारा विजन गेट का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पे जाके लॉगिन करके दे सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम कुछ में भी आ रहा है तो कंसल्ट टीम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी कंसर्न पर्सन है उससे रिलेटेड। ठीक है, और अगर वाइब्रेशन या फिर जितना भी टॉपिक मैंने लिया है अभी फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल नाउ, जितना भी टॉपिक मैंने लिया है, मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया है, उससे रिलेटेड कुछ भी कहीं पे भी डाउट हो, या फिर कोई भी, चलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई भी अगर टॉपिक ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, आप लोग चाह रहे हो जो मैं क्लास लूँ, तो आप बताइएगा। मैं जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनको एक्स्ट्रा भी क्लास दे सकता हूँ। ठीक है, बट कैसे भी करके जो करना हो करो, बट रैंक लाना है और अच्छे से लाना है। तो और अभी काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, तो सीरियसली पढ़ाई कीजिए, और क्लास नोट को काफ़ी बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। छोटे छोटे फार्मूलेज का अलग अलग नोट बनाइए, एक सिर्फ, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूलेज होंगे। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन का हो गया, उसमें कुछ थियोरेटिकल नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग में क्या आएगा, वेल्डिंग इफिशियंसी निकालना आएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे ज़्यादा क्या आएगा। ठीक है, एक दो थ्योरेटिकल ठीक है बाद में देखेंगे अपन, बट न्यूमेरिकल बनाना लास्ट 30 ईयर उठाओ और जम के न्यूमेरिकल बना दो एक बार, तो आराम से गेट में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जो टफ टास्क हो जाएगा स्कोर करने में। ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारा भी सिलेबस जो भी है जल्द से जल्द मैं वाइब्रेशन 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। 2 से 3 लेक्चर ही अब बचे हुए हैं, और सर भी लगे हुए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप जो पहले हो चुका है सब्जेक्ट उसे कवर करते रहिए, और जो अभी हो रहा है उससे आप लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल देखिए, और एक बार अच्छे से करके जाइए, नोट में डालिए। और हाँ, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए द मीन, ये क्या मैं नोट करवाऊँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन किसे कहते हैं, द मीन पोजीशन अबाउट विच सिस्टम विल, द मीन the mean position about which the system will oscillate is known as equilibrium
इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ तक क्लियर। मीन पोजीशन अबाउट विच द सिस्टम विल ऑसिलेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टॉपिक का हेडिंग डाल लीजिए। एनालिसिस ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्ड या फिर लॉन्गिट्यूडनल और फ्री वाइब्रेशन। ओके, एनालिसिस ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्ड लॉन्गिट्यूडनल और फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। ठीक है, यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, स्प्रिंग में हमने क्या पढ़ा, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। स्प्रिंग को हम लोग इंक्लाइंड स्प्रिंग के साथ हम लोग को कैसे डील करना है, इंक्लाइंड स्प्रिंग के साथ कैसे हम लोग को डील करना है। के को किससे रिप्लेस करेंगे, के इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, इंक्लाइंड एंड हॉरिजेंटल। ओके, तो इसके बाद हमने देखा डैम्पिंग में हमने क्या देखा, फोर्स, डैम्पिंग फोर्स हम लोग कैलकुलेट किए, C इंटू एक्स डैश डॉट, C इंटू एक्स डॉट। ये किस कंडीशन में काम आएगा, ये हमारे पास जब ट्रांसलेशन का कंडीशन हो। अगर रोटेशन आ गया तो क्या करेंगे, TD इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू थीटा डॉट। अगर हमारे पास रोटेशन आ रहा है तो TD क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू थीटा डॉट, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास रोटेशन हो गया तो। ठीक है, तो मेन हमारा अभी जो जनवरी का एक शेड्यूल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, जैसे कि थर्मोडायनेमिक मैंने जो जितना भी क्लास लिया है, या भी जो भी हो, जहाँ पे भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप लोग निफिक्र जो सर भी पढ़ाए हो उनसे आप लोग डाउट पूछिए, जितना से ज़्यादा हो। टेस्ट सीरीज में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, और चैट कंपेरेटिव टाइप ऑफ स्टडी कीजिए। ठीक है, जैसे कि ऑटो साइकिल, ड्यूअल साइकिल, डीजल साइकिल में क्या डिफरेंस है, तो तीनों का एक पेज में तीनों साइकिल होना चाहिए और तीनों का एफिशिएंसी होना चाहिए, कहाँ से हीट इनपुट कर रहे हैं, कहाँ से हीट आउट हो रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा साइकिल कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है, कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कर रहा है। ठीक है, सारा कुछ इफिशिएंसी किस किस फॉर्म में हम लोग किस किस साइकिल में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव वे ऑफ स्टडी क्या रहेगा ना, मतलब कन्फ्यूजन का चांस कम कर देता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा ड्यूअल साइकिल, ऑटो साइकिल एंड जो जितना भी साइकिल हो। ठीक है, सारा साइकिल को आप लोग एक कंपैरेटिव वे ऑफ स्टडी चार्ट बनाइए, उसके थ्रू कवर कीजिए। जहाँ जहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, ये कीजिए। फार्मूला का अलग, और जितना फार्मूला का अलग सीट बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज दीजिए, और नोट्स को प्रॉपर रिवीजन, मतलब जैसे कि आज हमने सॉम को रिवाइज किया, तो 2 दिन बाद मतलब ऐसा कीजिए जो कंटिन्यूस इंटरवल पे सॉम हो, फिर अगले मंडे को सॉम आना चाहिए, 1 वीक के बाद सॉम आना चाहिए। ये नहीं अब सॉम रिवाइज करके रख दिए तो अब सीधा गेट से 1 दिन पहले सॉम को उठाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ की पॉइंट मुझे लगा था शेयर करने के लिए, तो मैं शेयर कर दिया। और बाकी अगर कुछ और कंसर्न चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं पे भी डाउट हो तो बार बार मैं बोल रहा हूँ
कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं वीडियो। तब तक सॉरी, कमेंट सेक्शन में अपना डॉट डालिए या फिर मुझे मैसेज करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।